Hello everyone, my name is Sadaf Arfi. I am working as assistant professor in Department of Pharmacy at Access Institute of Pharmacy, Kanpur. Today I am going to give an introductory class of subject pharmaceutical engineering. This is a subject of B Pharm second year, third semester. So before going to subject, we'll discuss about why we are studying pharmaceutical engineering and what are the various topics that are involved in the subject, or all the students who are studying in BPharm third year, what are the various topics they are going to study in the subject given. So, what is pharmaceutical engineering? Pharmaceutical engineering is generally a branch of engineering which involves the various formulation techniques, various methods, and what are the various manufacturing instruments that have been involved while developing a formulation. It also includes about the various analysis parameters and what are the various processes through which after developing a formulation, what are the various parameters through which the formulation goes for analysis and for checking the quality control. It also involves the various instruments which are being utilized while developing a formulation or while checking the quality of the developed formulation. So, as it is written in the definition that it is a branch of engineering focused on discovering, formulating, and manufacturing medications, analyzing and quality control processes, on designing, building, and improving manufacturing sites. So, basically, pharmaceutical engineering is a subject which involves various unit operations which have been utilized while developing a formulation. See, जब भी हम कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो बनाते टाइम हमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और बहुत सारे स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे कि हमने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें एपीआई मिलेगा तो हमें उस एपीआई की पार्टिकल साइज़ की स्टडी करनी है। मे बी जो एपीआई हमें मिला हो वो डिज़ायर्ड पार्टिकल साइज़ का ना हो, तो हमें फिर उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमें, जैसे कि साइज़ रिडक्शन हुआ, साइज़ सेपरेशन हुआ। फिर अगर हमारी कोई लिक्विड फॉर्मुलेशन है या हमारा कोई एपीआई हमने मान लीजिए प्रेसिपिटेट करके फॉर्म किया है तो उसमें इवापोरेशन का प्रोसेस होगा, या हमने कोई प्रेसिपिटेट बनाया है तो उसमें डिस्टिलेशन या फिल्ट्रेशन का प्रोसेसेस होंगे प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ये सारे जो हैं ये आपके यूनिट ऑपरेशंस हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं और जिसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में आपके पढ़ेंगे कि क्या क्या यूनिट ऑपरेशंस हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके यूनिट ऑपरेशंस को या इन जो भी हमारे स्टेप्स हैं इन्हें हम फुलफिल करते हैं। तो आइडिया जो आपको मिलेगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का वो है कि स्पेसिफिक जो भी फिजिकल ऑपरेशंस हैं आप उनके बारे में एनालाइज कर पाओगे, उन ऑपरेशंस को, या क्या क्या वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ करते हैं, उन स्टेप्स के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर है डिफरिंग इक्विपमेंट्स, उन स्टेप्स को आपको करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे इसके बारे में आप पढ़ेंगे। कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं जब हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। एंड देन फाइनली है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम कंट्रोल करके रखते हैं जब भी हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं। These are the various unit operations which are involved while developing formulations like material handling, cleaning, separating, size reduction, flow of fluids, mixing, heating, distillation, filtration, and packaging, controlling. These are the various unit operations which are involved while we are developing formulations. This is the chapter 1. So in unit 1, we'll discuss about flow of fluids, size reduction and size separation techniques, why we are doing size reduction, why we are doing size separation, and what are the various instruments which we'll use while doing these unit operations. So firstly we'll discuss about flow of fluids, that why we are studying flow of fluids। जैसे कि फार्मेसी में हमारा क्या होता है कि जब भी हम लिक्विड्स के साथ हैंडलिंग कर रहे होते हैं, लिक्विड फॉर्मुलेशंस बना रहे होते हैं, तो इंडस्ट्री में हमारा क्या है कि किस तरह से जो पाइपलाइंस वगैरह होती हैं उनसे किस रेट से लिक्विड फ्लो कर रहा है, क्योंकि हर लिक्विड की अपनी कुछ विस्कोसिटी होती है, कुछ फ्लो रेट होता है। तो हमें हर लिक्विड के फ्लो रेट और हर लिक्विड की विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग उसके फ्लो रेट को पढ़ना पड़ता है। तो हम उसमें ही हम देखेंगे कि क्या फ्लो रेट, कैसे हमारा कोई हमें लिक्विड है उसकी फ्लो रेट डिटरमाइन करना है, मे बी उसको हम एज एन एक्सिपिएंट या एज एन एपीआई यूज़ कर रहे हो, तो हम कैसे उससे फॉर्मुलेशन डिज़ाइन करेंगे। तो इट विल बी necessary for us to know the flow rate of the liquids. Then we'll discuss about what are the various manometers. Manometers generally are the devices which are used to measure the pressure difference between the 2 points. So अगर हमें पाइपलाइन में किसी दो पॉइंट के बीच में क्या प्रेशर डिफरेंस आ रहा है फ्लो रेट में स्टडी करना हो तो उसके लिए हम मैनोमीटर्स यूज़ करते हैं। तो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि मैनोमीटर्स क्या होते हैं, कैसे क्या डिवाइसेस हैं और कितने टाइप के मैनोमीटर्स हमारे हैं, जैसे कि सिंपल हुआ,
डिफरेंशियल हुआ, इंक्लाइंड हुआ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर एक फुल आउट एक्सपेरिमेंट है पूरा जो कि फ्लो रेट को डिटरमाइन करता है, वो हम पढ़ेंगे उसका क्या इंस्ट्रूमेंट रेनॉल्ड्स ने यूज़ किया था और क्या उसकी एप्लीकेशन है फार्मेसी में। नेक्स्ट हम बर्नौलीज थ्योरम डिस्कस करेंगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लाइक 12th। तो बर्नौलीज थ्योरम उसकी एप्लीकेशन क्या है इसकी स्टडी करेंगे हम। फिर जब भी हमारा कोई भी लिक्विड किसी भी पाइपलाइन के थ्रू फ्लो करता है तो क्या क्या उसके अंदर एनर्जी लॉसेस होते हैं, जैसे कि आपके फ्रिक्शनल लॉस हुए, एनलार्जमेंट लॉसेस हुए और आपके पाइपलाइन की फिटिंग्स में लॉसेस हुए, कंट्रैक्शन लॉसेस हुए, ये सारे लॉसेस को हम पढ़ेंगे। और फिर ओरिफाइस मीटर, वेंचुरी मीटर, ट्यूब एंड रोटामीटर, ये सारी डिवाइसेस को हम फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस अबाउट साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन हम क्यों करते हैं? जब भी हमें एपीआई कोई मिलता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट विल गेट द साइज ऑफ पार्टिकल विच वी नीड। ज़रूरी हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो पार्टिकल साइज हमें चाहिए, हमें एपीआई जो कंपनी दे रही है वो सेम पार्टिकल साइज हो। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपनी फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को साइज रिड्यूस करवाना पड़ता है। जो भी हमारा एपीआई होगा इसका साइज रिडक्शन हमें करना पड़ेगा। तो साइज रिडक्शन डेफिनेशन अगर हम पढ़ें कि वो एक बेसिक टेक्निक है जिसमें हम अपने पार्टिकल को लार्जर साइज से स्मॉलर साइज में कन्वर्ट करते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं कि हम जब फॉर्मुलेशन बना रहे होते हैं तो फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी अच्छी हो, फॉर्मुलेशन ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उसका इंप्रूव हो जाए, उसका डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएँ। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको हम माइंड में लेके हम साइज रिडक्शन टेक्निक्स को करते हैं। फॉर्मुलेशन की मैन्युफैक्चरिंग में स्टेप को हम यूज़ करते हैं। इसमें हमें स्टडी करना है that is mechanism and what are the various laws governing size reduction, what are the various factors that will affect the size reduction process, and what are the various instruments which we'll use about while we're doing size reduction. The instruments are generally hammer mill, ball mill, fluid energy mill, end runner mill, edge runner mill. These are the various instruments which I have given all introduction of pictures also, that these all instruments we'll discuss while we'll study about the subject. Next is size separation technique. It is not necessary that after doing size separation, the particle size which we'll get are of uniform size. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो हमने जो साइज रिडक्शन टेक्निक्स को यूज़ किया है उससे हमें डिजायर्ड पार्टिकल साइज मिला है कि नहीं मिला है, या जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो सेम साइज के हैं कि नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें साइज सेपरेशन टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है, ताकि हम क्या करें कि जो हमारी रेंज है उसके अकॉर्डिंग अपने उस पूरे एपीआई को या उस पूरे प्रोडक्ट को उस साइज रेंज में डिफरेंशिएट कर पाएँ। ठीक, तो इसके लिए इसमें भी हमें वही स्टडी करना है, व्हाट आर द वेरियस मैकेनिज्म्स फॉर साइज रिडक्शन, लॉज गवर्निंग साइज रिडक्शन, व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच विल यूटिलाइज फॉर साइज सेपरेशन स्टडीज। In the second chapter, we'll discuss about heat transfer process, evaporation and distillation processes. What is heat transfer process? लाइक जब भी हम डिस्टिलेशन या इवेपोरेशन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो इवेपोरेशन करवाने के लिए हम कुछ हीटिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे, डिस्टिलेशन करवाने के लिए हम कुछ हीटिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो जो भी हीटिंग प्रोसेसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे उस इवेपोरेशन असेंबली को या डिस्टिलेशन असेंबली को हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किस रेट से हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसकी स्टडी करने के लिए हम वेरियस हीट ट्रांसफ़र प्रोसेसेस को पढ़ते हैं। हीट ट्रांसफर प्रोसेस में आपका कंडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकता है, कन्वेक्शन, रेडिएशन इसके थ्रू हो सकता है, बहुत सारे हीट एक्सचेंजर्स यूज़ होते हैं, हीट इंटरचेंजर्स यूज़ होते हैं, जहाँ पे हीट हमारा कह सकते हैं फॉर्म ऑफ हीट है वो चेंज नहीं होता है, कहीं पे हमारा फॉर्म ऑफ हीट चेंज हो जाता है जो कि हमारे मटेरियल को कह सकते हो हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। तो वो हीट एक्सचेंजर्स, हीट इंटरचेंजर्स और व्हाट आर द वेरियस मैकेनिज्म्स हैं जो इनको हम यूज़ करते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये सारी टेक्निक्स हम आपके हीट ट्रांसफर प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन टेक्निक। जब भी हम कोई एपीआई बना रहे होते हैं तो मे भी हो सकता है कि हमने उसका प्रेसिपिटेशन बनाया हो या हमने ग्रैन्यूल्स बनाए हो टैबलेट पंचिंग के लिए, तो उन ग्रैन्यूल्स में जो भी हमारा लिक्विड प्रेजेंट है या जो भी कह सकते हो आप सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसको इवेपोरेट करवाने के लिए, ग्रैन्यूल्स को ड्राई करवाने के लिए हम इवेपोरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। या फिर हमने एपीआई बनाया है और एपीआई से हमें लगता है कि हमारा जो मदर लिकर है उसे हमें रिमूव करवा के अपना प्रेसिपिटेट का जो सॉलिड कंटेंट है वो चाहिए, तब हम इवेपोरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। एक्सेस में कहीं पे भी वाटर या कहीं पे भी हमारा अनवांटेड सॉल्वेंट प्रेजेंट हो उसको रिमूव करने के लिए हम इवेपोरेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो इस आपके यूनिट में हम पढ़ेंगे कि कौन से इवेपोरेशन टेक्निक्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इवेपोरेशन के लिए यूज़ करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो है वो क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर है,
और आपका फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर है, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर है। ये सारे इवेपोरेटर्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे, कौन से मैकेनिज्म्स यूज होते हैं इवेपोरेशन में ये स्टडी करेंगे, कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं जो आपके इस इवेपोरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम डिफरेंट डिस्टिलेशन असेंबलीज के बारे में पढ़ेंगे, क्यों हम डिस्टिलेशन करते हैं ये पढ़ेंगे। भाई कोई भी मटेरियल है जिसका हमें प्योरिफिकेशन करवाना है या सॉलिड में से लिक्विड को सेपरेट करवाना है, इस सेपरेशन और प्योरिफिकेशन के लिए हम डिफरेंट डिस्टिलेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे सिंपल डिस्टिलेशन हुआ, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन हुआ, आपका फ्लैश डिस्टिलेशन हुआ। ये सारी डिस्टिलेशन टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, उसके बेसिक प्रिंसिपल, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन कि कैसे डिस्टिलेशन असेंबलीज काम करती हैं, फार्मेसी में कहाँ इनका एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्टिलेशन यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है आपका ड्राइंग और मिक्सिंग का। क्या ड्राइंग और मिक्सिंग सेम, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा सब्जेक्ट ही यूनिट ऑपरेशंस पे बेस्ड है कि कौन कौन से यूनिट्स हैं या कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि फार्मास्यूटिकल आपकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में उन यूनिट ऑपरेशंस को यूज़ किया जाता है। तो ड्राइंग और मिक्सिंग भी आपका एक यूनिट ऑपरेशन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम डिफरेंट डोजेस फॉर्म की, इनको भी हम एज एन यूनिट ऑपरेशन यूज़ करते हैं। ड्राइंग क्या है, ये प्रोसेस होता है जहाँ पे हम एक्सेस रिमूवल, जो कि हमारा जो भी हमारा वाटर है वो जब कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, जब ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो टेक्निकली वहाँ पे इवेपोरेशन होगा। बट जब वो मॉइस्चर या वो अमाउंट जो भी हमारा सॉल्वेंट है अगर वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है और उसको हमें रिमूवल करवाना है तो वहाँ पे हम ड्राइंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। ड्राइंग में जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो हमें कम्प्लीटली ड्राई मिलता है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि टैबलेट पंचिंग में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स को बनाने के टाइम हम उसमें जो भी बाइंडर या जो भी सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, फिर ग्रैन्यूल्स बनाने के बाद हम उन्हें क्या करते हैं, कम्प्लीटली ड्राई करते हैं ताकि हमारी टैबलेट पंचिंग प्रॉपर हो पाए, टैबलेट को प्रॉपर हार्डनेस हमारी मिल पाए। तो इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे ड्राइंग की डेफिनेशन, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ड्राइंग के, क्या क्यों हम ड्राइंग का प्रोसेस कर रहे हैं, क्या इसकी फार्मेसी में एप्लीकेशन है, कौन कौन से वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं फार्मेसी में। जैसे कि हमारा एग्जांपल है ट्रे ड्रायर है, ड्रम ड्रायर है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, वैक्यूम ड्रायर है, फ्रीज ड्रायर है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स की हम स्टडी करेंगे, इनका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग कैसे करते हैं ये, क्या इनको यूज़ करने के मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं और कहाँ-कहाँ फार्मेसी में इनका यूटिलाइजेशन होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे अपने थर्ड यूनिट में। नेक्स्ट है मिक्सिंग है। मिक्सिंग हम क्यों कर रहे हैं, मे बी हमें कोई फॉर्मुलेशन बनाते टाइम, फॉर एग्जांपल हम टैबलेट ही ले रहे हैं तो टैबलेट में हमारा एक एपीआई होगा, उसके साथ अदर एक्सिपिएंट्स होंगे। तो अगर हमारी यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं हो पा रही है, मान लीजिए हमारा कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट कंप्लीटली या प्रॉपरली बाइंड नहीं कर रहा, तो वो चीज़ हमारी टैबलेट की क्वालिटी को इफेक्ट करेगी। अगर आपने कलरिंग एजेंट प्रॉपरली मिक्स नहीं किया अपने एपीआई के साथ तो आपके टैबलेट में डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स या पैचेस दिखेंगे उस कलर के। आपने प्रॉपर बाइंडर नहीं, अगर आपने यूज़ किया है या मिक्स नहीं किया है प्रॉपर, तो आपके टैबलेट में प्रॉपर हार्डनेस नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं अगर आप फॉर्मुलेशन में मिक्सिंग को प्रॉपरली यूज़ ना करें या अपने इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर मिक्स ना करें। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि मिक्सिंग का टेक्निक क्यों पढ़ेंगे हम फार्मेसी में, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम डिफरेंट मटेरियल्स को एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बना सकें, उनका यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकें अपने कंपाउंड्स के अंदर। फिर हमारा फिजिकल और केमिकल रिएक्शन अगर हो रही हो तो उसे हम कंट्रोल कर सकें रिएक्शन को और प्रॉपर रिएक्शन हो पाए। इसके एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मिक्सिंग को इफेक्ट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। और हमारे जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे मिक्सिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं, उनकी प्रिंसिपल, उनका कंस्ट्रक्शन, कैसे वो वर्क करते हैं, क्या उनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और फार्मेसी में उनका कहाँ किस किस जगह पे यूज़ है। जो इंस्ट्रूमेंट आपको इसमें पढ़ने हैं बेसिकली है वो है आपका डबल कोन ब्लेंडर, ट्विन शेल ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेंडर, प्लेनेटरी मिक्सर। ये जो मिक्सर्स हैं ये अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं कि आपको सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग करनी है कि सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग करनी है, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग करनी है। इस अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रूमेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और वो भी जैसा हमारा यूटिलाइजेशन होगा, जिस तरह की मिक्सिंग हमें करनी होगी उस अकॉर्डिंग हमें चेंज करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर में हमारा जो हमें पढ़ना है वह फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। ये दो यूनिट ऑपरेशन हमें पढ़ने हैं। फिल्ट्रेशन टेक्निक हमारी जब भी यूज़ होती है तो अगर हमें लग रहा हो कि हमारा एपीआई हमने प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनाया है और हमें उसे फिल्टर आउट करना है, या फिर एपीआई के अलावा हमें मान लीजिए हमने सिरप बनाया है और हमारी शुगर कंप्लीट डिजॉल्व नहीं हुई है, हमें उसे फिल्टर आउट करना है,
या फिर हमने कोई और XYZ ड्रग ली है जिसको हमने किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज करवाना है, बट वो ड्रग कंप्लीटली सॉल्युबलाइज नहीं हुई और हमें लग रहा है कि हमारी ड्रग जो है वो एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, हमें उसका सेपरेशन करना है, तो उस कंडीशन में हम फिल्ट्रेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन टेक्निक भी एक सेपरेशन टेक्निक है, सेम एज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक भी एक सेपरेशन टेक्निक है। तो फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे कि सेपरेशन टेक्निक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों का सेपरेशन हम कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों फिल्ट्रेशन टेक्निक पढ़ रहे हैं, फार्मेसी में इसका यूटिलाइजेशन कहाँ है, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में इसका यूटिलाइजेशन कहाँ है, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फिल्ट्रेशन को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके फिल्ट्रेशन अचीव कर सकते हैं। तो ये सारे पढ़ने हैं, फिल्टर मीडियाज पढ़ने हैं, फिल्टर एड्स पढ़ने हैं। फिल्टर मीडियाज जो होते हैं वो आपके फिल्टर मीडियम की तरह यूज होते हैं, जो आपके लिक्विड को और सॉलिड कंटेंट को सेपरेट करते हैं। फिल्टर एड जो है ये आपके फिल्ट्रेशन रेट को इम्प्रूव कर देते हैं। इनके बारे में, इनके एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्हें हमें पढ़ना है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स आप इसमें पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन यूनिट में वो आपका है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर है, ड्रम फिल्टर है, रोटेटरी फिल्टर है, कार्ट्रेज फिल्टर है, मेम्ब्रेन फिल्टर है। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिन फिल्ट्रेशन असेंबलीज को हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक एक प्रोसेस है जहाँ पे हम किन्हीं भी दो कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स में हम पढ़ेंगे कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं इसको, क्यों सेपरेशन के लिए हम फिल्ट्रेशन ना यूज करके सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करेंगे, क्योंकि है तो दोनों ही सेपरेशन टेक्निक। क्यों हम सेंट्रीफ्यूगेशन को प्रेफर करेंगे, कहाँ हम फिल्ट्रेशन को प्रेफर करेंगे, क्या इसके प्रिंसिपल हैं जो कि अंदर इसके इन्वॉल्व होंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन फार्मेसी में क्या है और कौन कौन से हमारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की हेल्प से। इसमें जो आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं वो है आपका परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, सेमी कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। कुछ एग्जाम्पल पिक्टोरियल डायग्राम मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स के हैंगे। नेक्स्ट आपका 5th चैप्टर है मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंस्ट्रक्शन, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। इसमें आपको पढ़ना है कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए जो कि हमारे इन यूनिट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। जैसे कि हमने फिल्ट्रेशन असेंबलीज बनाई, हमने डिस्टिलेशन असेंबलीज बनाई, या हमने इवापोरेशन के इंस्ट्रूमेंट बनाए, या हमने साइज रिडक्शन के इंस्ट्रूमेंट बनाए। तो कुछ मटेरियल्स होंगे जिनको यूज करके हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करेंगे। तो हम उन इंस्ट्रूमेंट्स या उन मटेरियल्स को कैसे चूज करेंगे, हमें उस इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह के मटेरियल के साथ हैंडल करना है, लिक्विड जो चीज़ हम यूज़ करेंगे, जो भी फॉर्मुलेशन हम बनाएंगे वो लिक्विड फॉर्म में होगी या डोजेस फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं जब हम प्लांट कंस्ट्रक्शन करते हैं एज वेल एज जब हम इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है इस यूनिट में कि कौन कौन से डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो कि यूज होंगे प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए, कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिन्हें हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए यूज करेंगे जिन्हें हम अपने फार्मास्यूटिकल प्लांट में यूज करने वाले हैं। तो ऐसे जो आपका है और कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इस कंस्ट्रक्शन के लिए जिनको हम कंसिडर करके इन मटेरियल को चूज करेंगे जिन्हें हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट है आपका कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच आर बीइंग इफेक्टिव और फॉर फार्मास्यूटिकल कंस्ट्रक्शन, व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज। अगर हम लिक्विड यूज कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि कोरोजन होने के चांसेस हों, तो किस तरह से हम कोरोजन को अवॉइड कर सकते हैं, कितने टाइप के कोरोजन हो सकते हैं। अगर हम जाएं कि फेरस मेटल्स यूज कर रहे हैं, नॉन फेरस मेटल यूज कर रहे हैं, ग्लास यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, तो किस तरह के मटेरियल के साथ हम कौन से ऐसे अपने इन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए कौन से ऐसे मटेरियल यूज करेंगे जो हमें पता हो कि हाँ हमें लिक्विड यूज करना है तो इसके साथ हम कोई मेटल या नॉन फेरस मेटल यूज नहीं कर सकते, या हमें हाईली एसिडिक सॉल्यूशन यूज करना है तो इसके साथ हम प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम अपने मटेरियल्स को कंसिडर करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमने क्लासिफाई कर दिया है कि कौन से वेरियस नॉन मेटल्स और मेटालिक कंपाउंड्स हैं। तो नॉन मेटल्स का क्या क्लासिफिकेशन है, उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आ जाते हैं। मेटल्स में आपका नॉन फेरस मेटल्स और फेरस मेटल्स आ जाते हैं, और फर्दर ऑन जो भी आपको इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी आप जब स्टडी करेंगे तो ये सारी स्टडी आपको करनी है। तो ये आपकी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का थ्रू आउट पूरा सिलेबस है जो हमें डिस्कस करना है बी फार्म सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर में। दिस इज ऑल, नाउ विल डिस्कस अबाउट द यूनिट्स इन further lecture. So these are the various materials which we'll discuss in
यूनिट फिफ्थ, व्हाट आर देयर क्लासिफिकेशन, हाउ दे आर क्लासिफाइड, कैसे हमने इन्हें क्लासिफाई किया है, कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि इस मटेरियल सिलेक्शन को इफेक्ट करते हैं, ये सब हम अपने फिफ्थ यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो इतने ही है फिफ्थ यूनिट के लिए। नेक्स्ट हमारा जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट यूनिट को और इलाबोरेटिव फॉर्म में। थैंक यू।